ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି 22,195 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଲେଭେଲର ଜବ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି RRB ୱାଇଜ୍, କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେବେଠୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ଲେଭେଲ୍ 1 7 ପ୍ରାଇମ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଜବ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 31/1/2026ରୁ ଅଛି। ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 2/3/2026। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 2/3/2026, ମାନେ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରୁଛି। ତ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ନାହିଁ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଟୋଟାଲି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ହିଁ ହେବ। ତ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମର ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ 2 ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବେ, ବାକି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥିବେ, ତ 4 ଯାଏଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ରୁ 14 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ 250 ରୁପିଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସାରିବା ପାଇଁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ, 22,195 ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। କାହା ଅନୁସାରେ? 1/1/2026 ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଜ୍ 18ରୁ 33 ବର୍ଷ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ଏହାର ଇନିସିଆଲ୍ ବେସିକ୍ ପେ କେତେ ହେଉଛି, 18,000, ଯେଉଁଟାକି ଲେଭେଲ୍ 1 7 CPCର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ତ କେମିତି ଫର୍ମ ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ତଥାପି କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଯାହାର ଡିଜିଲକର୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଆଧାର ଆମର ଦେଇକି ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ସେଠାରେ କହିଦେବି ଯେ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଇଠି ରେଲୱେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇଟା 2 CBT ବି କରିପାରିବେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ CBT ସରିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ CBT ରହିଲା। CBT ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଦେନ୍ ରହିବ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, PET ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ରନିଂ ପାଇଁ ଥାଏ 4 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ 1.6 କିଲୋମିଟର, ମେ ବି ମୋର ତ ଭଲସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 1 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 1.6 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ରନିଂ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା କରିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ଯିବେ କ'ଣ, DV ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ DV କରିବେ, ତା'ର DV ଯେଉଁ ଦିନ କରିବେ ତା'ର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର DV ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ତ ମନେ ରଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, CBT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ DV ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଏଇ ବେସ୍ରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର CBTରେ PET ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1:3 ରେସିଓରେ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 3:1 ରେସିଓରେ, ମାନେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପିଲାଙ୍କୁ 3 ଗୁଣା ପିଲା ନେବେ। ମନେକର 100 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 300 ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଯାହା ଯେତିକି, କାରଣ ବହୁତ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା ପରେ DVକି ଆପଣଙ୍କୁ 1:1 ରେସିଓରେ ନେବେ। ତ ଯେତିକି ଦରକାର ଥିବ ତ ସେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ DV ପାଇଁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ନେବେ। ବଟ୍ ଆମ ରେଲୱେର ଥାଏ ଯେ ସେ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରି, ମାନେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥାନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ। ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ କଲେ 1/3 ମାର୍କ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଲଗା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 1ର ପୋଷ୍ଟ, ତ ଯେତେ ସବୁ ଲେଭେଲ୍ 1ର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तो थोड़े पोस्ट प्रिफरेंस दे सारा पर आउ ताको चेंज कर परिबेनी। तो आगे फास्ट कहार जॉब प्रोफाइल कौन को टाइप रो जॉब कैटेगरी रहइबो फास्ट देखि नेबे तापर ही फॉर्म अप्लाई करिवे। ठीक अच्छे यहाँ सबुठ रेलवे जिते भी एग्जाम माने वैकेंसी बाहर तापाई गोटे सबुठ इम्पोर्टाट जिनस हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक अच्छे तो मेडिकल स्टैंडर्ड फास्ट देखीदा ए टू आमर मेडिकल कैटेगरी आमर कौन कौन दरकार 6/9 ब थाए। ठीक अच्छे विदाउट ग्लास देखो 6/9 6/9 विदाउट ग्लास तो ब थाई आमर 6/9 रहा दरकार माने देखो सबुठ बेस्ट आई हूँ आमर एएलपी जोटा दरकार हुए 6/6। ठीक अच्छे तो यहाँ बेस्ट तापर जदि टिके प्रोब्लेम थी तो 6/9 चलो तो यहाँ टिके एडजस्टेबल बट तथापि या पर 6/12 अच्छी जो मानकर टिके टिके आखि माने बेसी भी प्रोब्लेम नथियो से माने एलिजिबल बाकी नहले एटा रेलवे आमर मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रिक्ट हुए तो यहाँ को बहुत देखुथे अलगा कौन जो मानकर कलर विजन थिबो तो से माने मैक्सिमम पोस्ट पाई एलिजिबल हेबोनी से माने देखंतु C1 ने गोटे कलर विजन नाही जोटा कि सेटा C1 ग्रेड रो जहाँ भी पोस्ट थिबो सेटा पाई केवल एलिजिबल हेबे। बाकी अलगा पोस्ट गुड़ा जमती कि A1 A2 A3 B1 पोस्ट पाई से माने एलिजिबल हेबेनी। बेस्ट आई कौन होची A1 जोटा कि एलपी पाई हमर दरकार होची 6/6 बाकी 6/9 देखंतु सबुथिरे 6/9 6/12 तो एगुड़ा हिट देखो 6/12 6/18 C1 ग्रुप रे जो मानकर आखि प्रोब्लेम थो C1 कैटेगरी पोस्ट एलिजिबल तो सेटा से अप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे कारण ये अच्छी देखो 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लास। ठीक अच्छे ये विदाउट ग्लास अच्छी गोटे पोस्ट आउ सबुथिरे विथ और विदाउट ग्लास तो यहाँ देखिए कौन कौन टेस्ट रोचे कलर विजन टेस्ट बाइनोकुलर विजन टेस्ट नाइट विजन टेस्ट तो यहाँ तो बाइनोकुलर विजन टेस्ट जो मैंने स्क्विंट थे टेरा। ठीक अच्छे तो स्क्विंट जो मैंने थे गोटे बाइनोकुलर जदि जना पड़ू से बाइनोकुलर विजन टेस्ट गोटे करेंगे। देन कलर विजन टेस्टा सबुठ रेलवे इम्पोर्टाट तो यहाँ नथिले मोस्ट पोस्ट एलिजिबल नुहे से अप्लाई भी करेंगे आपण मान बेस्ट। तो C1 कैटेगरी जो मानकर कलर विजन टेस्ट थी से C1 पोस्ट C1 मेडिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी अनुसार आप पोस्ट अप्लाई करेंगे। देन अलग पोस्ट एलिजिबिलिटी कहली 6 A2 आमर 6/9 A3 कौन 6/9 B1 आमर 6/9 और 6/12 सबू अलाउ अच्छी तो यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड टाक भलसे देखिए जब कहे मुझे गोटे मेडिकल स्टैंडर्ड उपर भलसे गोटे पूरा डिटेल्स वीडियो भी आनीदेवी। देखो अपर एज लिमिट कौन 18 ରୁ 33 वर्ष से अनुसार आमर UR EWS पिला जो माने 2/1/1993 पर जन्म होती किंतु 1/1/2008 पूर्व से माने UR EWS कैटेगरी पिला एलिजिबल। ओबीसी रे कौन 2/1/1990 पर जो माने बर्थ करें। ठीक अच्छे जन्म ग्रहण करें आ 1/1/2008 पूर्व तो से माने एलिजिबल से भाया SC ST मान कौन जो मैंने 2/1/1988 पर बर्थ कर तो से एलिजिबल तो यही जिनस को देखीदे आपंकर जदि डेट रेंज रे आपंकर डेट ऑफ बर्थ आसी देन आप एलिजिबल कारण 18 ରୁ 33 वर्ष हूँ एलिजिबिलिटी। तो एज रिलैक्सेशन एगुड़ा सब अच्छी एगुड़ा किसी दरकार ना ऑलरेडी मेंशन कर देछि जे एतिक रु एतिक एज भितर ही आप एलिजिबल तो इंक्लूड करके तो यही डाटा को ही मन रखिए यही भितर जदि आपंकर एज आसुथिबो आप एलिजिबल। देखो एप्लिकेशन फी आमर केते रहउची जते भी आमर UR आउ EWS कैटेगरी पिला रहउचंती तो सेमानक पई आमर एप्लिकेशन फी होउची कोन UR EWS आउ OBC कैटेगरी पिलांक पई। ठीक अछि तो सेमानक पई आमर कोन रहउची सेमानक एप्लिकेशन फी होउची 500 बट जते बेले आपण फास्ट एज एप्लिकेशन सॉरी फास्ट एज एग्जाम अप्लाई दे देबे माने CBT कंप्लीट कर देबे तो CBT पर आपन को 400 रिफंड मिल जाओ। ठीक है बट ये देखो 250 टका को मानक SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी
और ईबीसी ईबीसी हूँ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो मानकर 50,000 रु फैमिली इनकम 50,000 रु लेस होइथो इयरली तो से माने एटी पे एलिजिबल हेबे माने 250 टका फॉर्म अप्लाई बेले देबे आ टोटली 250 टका सामानकु एग्जाम पर सीबीटी पर रिफंड हो जाओ तो सीबीटी पर समस्त को रिफंड जो माने सीबीटी अपियर करेंगे से मानक ही रिफंड हम ठीक अच्छे ये जिनस भी ध्यान देवे जनरल कैटेगरी 500 रिफंड हम 400 टका 100 टका डिडक्ट हम बाकी वोमेन ट्रांसजेंडर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन एंड ईबीसी पिला 250 जोटा कि फुली रिफंड हो जो मैंने सीबीटी देखो कहीदे अलरेडी सीबी ओनली कैंडिडेट्स हु अपियर सीबीटी विल गेट रिफंड अदरवाइज तुम पाइबे नहीं तो मोड ऑफ आमर फी पेमेंट कौन रोचे ऑनलाइन मोड ही हम क्यूआर कोड स्कान करी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जहाँ भी अच्छी से ऑप्शन में आप दे पारे तो एबीसी कहूली एबीसी पे आपंकर एलिजिबल हो 50,000 रु फैमिली एनुअल फैमिली इनकम 50,000 रु लेस हवा दरकार तो यार अलग किसी रिजर्वेशन ना ओनली आपणकर जमती कौन कहले फॉर्म अप्लाई बेले टिके कम हम 250 टका तो नॉर्मली एमती तो फॉर्म अप्लाई यहाँ बाहर करने 100 टका भी खर्च हो हाँ गोटे जिनस हूँ जदि बीपीएल कार्ड आपण मान पाखे रोचे तो यहाँ आप एलिजिबल होता देखिए रिफंड कथा कहीदेले देखो तो ये विषय में तो डिटेल्स सब नहीं आसवि बाकी कहूँ ईडब्ल्यूएस को मैंने एलिजिबल हे ईडब्ल्यूएस हूँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो मानकर फैमिली इनकम 8 लाख रु कम थी ठीक अच्छे कौटी ये 8 लाख रु कम थी जार 5 एकर एग्रीकल्चरल लैंड रु ऊपर नथिबो रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट रु अधिक नथिबो रेसिडेंशियल प्लस 100 स्क्वायर यार्ड रु अधिक नथिबो म्युनिसिपालिटी एरिया रे 200 स्क्वायर अधिक नथिबो नोटिफाइड म्युनिसिपालिटी एरिया रे तो यहाँ बेसी मैटर करनी तो इनकमटा एक्चुअली मनकर जड़े जदि फैमिली किए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो जदि 8 लाख रु अधिक पाते तो से एलिजिबल हेबनी ठीक अच्छे यहाँ को देखिए टे देन कौन रहा देखा तो जो मैंने ऑलरेडी जॉब रे थे तो एनओसी दरकार ठीक अच्छे एनओसी दरकार बट देखो जड़े जदि अलग कौन सी जॉब रे अच्छा से रेलवे ग्रुप डी आसबार किसी नहीं इम्पोर्टान्स एते ना जदि भी आसवाक चाहते तो एनओसी अप्लाई करदे रिक्रुटमेंट प्रोसेसटा मुझे अलरेडी कहीदे फास्ट कौन हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तापर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तापर डीवी देन मेडिकल डीवी जो दिन हम परदिन ही मेडिकल कर दियंती यहाँ आमर कौन 3:1 ने 3 गुणा पिला तापर फीटीपी कोटा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देन डीवी के 1:1 ने चलते इम्पोर्टाट देखिए आम एग्जाम पैटर्नटा कौन हो फास्ट एग्जाम सीबीटी पे क्लियर कले ही अलग राउंड को जापर ना तो सीबीटी आपणकर एग्जाम ड्यूरेशन हूँ के 90 मिनिट माने 1.5 घंटा ठीक अच्छे 1 आवर 30 मिनिट कौन के क्वेश्चन आसो 25 मार्क आसो जनरल साइंस रु मैथमेटिक्स रु आसो 25 मार्क रीजनिंग रु 30 मार्क आमर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रु 20 मार्क टोटाल 100 मार्क हम देखो इम्पोर्टाट ये जो 25 मार्क मैथ आउ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क यहाँ 55 क्वेश्चन टा आपन को देखो गोटे मिनिट रु माने आपन को 90 मिनिट हूँ टोटाल टाइम किंतु क्वेश्चन हूँ 100टा तो गोटे मिनिट भी आपन को टाइम मिलनी तो से अनुसार मैथ आउ रीजनिंग को भलसे प्रैक्टिस करेंगे जनरल साइंस सबू एनसीईआरटी बुक आउ जहाँ भी आमर बुक अच्छी आउ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये करके जनरल साइंस को सारे सेमती कौन करंट अफेयर
को भी कवर करिए मु भी ऑलरेडी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मोर प्लेलिस्ट अच्छी तो सहीटार भी यहाँ अच्छी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग अच्छी मैथमेटिक्स अच्छी तो प्राय जिनस अच्छी जदि प्रिपेयर करने चाहिए जाई देखिपारे जनरल साइंस ही ना जनरल साइंस मु वीडियो आनीदेवी जदि भी कहे यापाई भी वीडियो नहीं आसबि तो टोटाल केते 100 क्वेश्चन आमर एग्जाम हम जोटा कि मैक्सिमम इंपोर्टेंस रोचे रीजनिंग मैथ पाई देखो 30-25 बाकी जनरल साइंस आउ जीएमसी की आमर केते होची 45 मार्क मैथमेटिक्स रो कौन रो क्वेश्चन आसो देखो नंबर सिस्टम बदमार्क आमर डेसिमल फ्रैक्शन एलसीएम एससीएफ रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज मेंसुरेशन टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स स्क्वायर रूट एज कैलकुलेशन कैलेंडर क्लॉक लाइफ एंड सिस्टम तो ये भितर ये विषय रे हमर मैथमेटिक्स रे रहिबो सिलेबस सेमती रीजनिंग रे कौन रहिबो एनालॉजी अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन रिलेशनशिप सिलोजिज्म वेन डायग्राम डीआई एंड सफिशिएंसी डिसीजन मेकिंग एमती सब आमर कोर्स रोचे जनरल एंट्रेंस सेमती जनरल साइंस रे आमर कोन 10th स्टैंडर्ड जाकर जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री आ बायोलॉजी लाइफ साइंस यहाँ हूँ बायोलॉजी तो लाइफ साइंस आउ फिजिक्स केमिस्ट्री विषय जहाँ भी 10th स्टैंडर्ड जाए सीबीएसई मोड तो सहीटा आमर आसो जनरल अवेयरनेस रे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कल्चर पर्सनालिटी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स तो सब प्राय रहा मैक्सिमम यहाँ आमर करंट अफेयर को बेस करके यहाँ पढ़े तो यहाँ थिला आमर सिलेबस पीईटी विषय रे देखंतु फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे दीटा अच्छी देखो ये 1 किलोमीटर 4 मिनिट एंड 15 सेकंड ठीक है तो 1 किलोमीटर आपको रन करते 4 मिनिट 15 सेकंड मेन मानक यहाँ तो वोमेन मानक कौन हो 5 मिनिट 40 सेकंड रे 1 किलोमीटर रन करेंगे तो यहाँ हूँ सब इम्पोर्टाट बाकी ये जो अच्छी 35 केजी को 100 मीटर 2 मिनिट जी यहाँ सब इजी यहाँ 99% पिला पास कर जाती यहाँ रेल फेल होती बाकी सब यहाँ रनिंग रे ही जहाँ इनएलिजिबल होती कि डिस्क्वालीफाई होती यही रनिंग रे ही होती तो से अनुसार देखिए रनिंग आम मेन मानक 1000 मीटर हूँ 4 मिनिट 15 सेकंड रे वुमेन मानक 1000 मीटर हूँ 5 मिनिट 40 सेकंड रे तो यहाँ को इम्पोर्टान्स देकी प्राक्टिस जो मैंने जो लगे हाँ आपण मानकर हो लगुच से टाइम प्राक्टिस करवा स्टार्ट करदे तो चलते देखा टोटाली फॉर्म केमती अप्लाई होची कही दूची जदि चाहिए मुझे आउ गोटे सेपरेट वीडियो भी फॉर्म अप्लाई आनीदेवी तो फॉर्म अप्लाई आपण मानक फास्ट कौन करने पड़ो आपणकर देखो आगुरी कौन होता फोटो आपड़ देते लाइव फोटो आपन को कैप्चर करके देवाक पड़ो जमती सेल्फी नौ तो सही विंडो रे गोटे थी वेब कैम खोलिकी आपड़ फोटोग्राफ ने मोबाइल भी यहाँ चाहिए करेंगे ना वेब कैम लगे यहाँ करेंगे सेल्फी यहाँ आउ फोटो दबा पासपोर्ट दबा दरकार ना यहाँ लाइव कैमेरा रे आपनकर फोटो कैप्चर हम तार डिटेल्स भी दे देजे जे बैकग्राउंड कौन रुक स्टेट मैंने पूरा सीधा देखो तो ना भी से नबनी एक्चुअली से रिजेक्ट करदेव जो मैंने अप्लाई करते भी जानी थे आप पूरा फेस करके रही आदि यार साइड अनेबे भी आपड़ा कैप्चर करनी माने फोटो कैप्चर कला बेले कैप मास्क कि ग्लास पिंधे ठीक अच्छे तो आमर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार अप्लाई बेले गोटे सिग्नेचर दरकार जोटा कि जेपीजी कि जेपीजी फॉर्मेटा मन रखु ना बारंबार फॉर्म अप्लाई बेले असुविधा है जेपीजी कि जेपीजी फॉर्मेट रे रमर जोटा सिग्नेचरटा ठीक अच्छे आउ कौन रसी एस टी सर्टिफिकेट दरकार भी अप्लाई जो मैंने फ्री ट्रैवल पास दरकार कारण सीबीटी फिजिकल एफिशिएंट आपन को फ्री ट्रैवल पास मिले रेलवे तरफ तो तार फायदा उठाया यहाँ देवाक पड़ो आपन को
सिग्नेचर केमती कौन करेंगे तार फोटो तो देख लाइव कैमेरा रे कर दो बाकी सिग्नेचर ପାଇଁ स्पेसिफिकेशन कौन अच्छी सिग्नेचरटा आमर ओनली ब्लैक इंक पेन हम ठीक अच्छे ब्लू पेन जमा सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो ब्लैक इंक पेन सिग्नेचर करके स्कान करके अपलोड करेंगे ठीक अच्छे यहाँ आम रनिंग हैंड रईटिंग हम कैपिटल लेटर नुह कि किसी अलग मोड करेंगे ठीक नॉट इन ब्लॉक कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर ओनली रनिंग हैंड रईटिंग करेंगे आ ब्लैक इंक पेन भल से मन रखु पिला बारंबार भूल करते ओरिड हमें कौन एमती भूल कली देखो स्कान द साइंड पेपर यूजिंग मिनिमम रेजोल्यूशन 100 dpi तो ये भितर यहाँ बड़ कथा नुहे देन इमेज साइज इमेज फाइल फॉर्मेट हूँ यहाँ इंपोर्टेंट मन रखु जेपीजी और जेपीजी आ फाइल साइजटा आमर के 30 रु 49 KB भितर रहा दरकार मिनिमम 140 रु 60 पिक्सेल ठीक अच्छे तो हाइट आवर आमर कौन रो 60 पिक्सेल विड्थ रो 140 पिक्सेल यहाँ आमर सिग्नेचर मिनिमम रिक्वायरमेंट ना फॉर्मटा रिजेक्शन हो तो यहाँ भलसे देखु 100 dpi जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट आ साइजटा हूँ 30 रु 49 KB मिनिमम पिक्सेल के 140 इंटू 60 पिक्सेल एतिकी मिनिमम दरकार आमर बॉक्सटा आमर बॉक्सर के 35 mm इंटू 20 mm हाइट्र सिग्नेचर बॉक्स तो माने जिते बड़े क्रॉप करेंगे तो मन रखी थे यहाँ साइज 35 mm आउ 20 mm ये साइज क्रॉप करके सिग्नेचर को पोस्ट करने को मन माने यहाँ ध्यान देवे ना सिग्नेचरटा ठीक आसबनी 35 mm इंटू 20 mm हाइट जदि आप मत कौन सी जाऊँच केप नेट केप को जाऊँच से तो एडिट कर देदेवे ये स्पेसिफिकेशन यहाँ को स्क्रीनशॉट रखी स्पेसिफिकेशन देखईदे से करदे ठीक अच्छे 30 रु 49 KB भितर जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट आ 35 mm रु 20 mm आमर बॉक्स साइज से अनुसार आप चूज करेंगे देखो रिजेक्शन जदि फॉर्म अप्लाई रे रिजेक्शन चाहूना तो कौन कौन ता पूर्व डिटेल्स जानिबा दरकार देखी दिंतु जो माने फोटो उठेला बेले नॉन व्हाइट बैकग्राउंड रखिए ठीक अच्छे जमीक आप लाइव फोटो उठाऊँ ना तो आपण बैकग्राउंडटा व्हाइट रहा दरकार नॉन व्हाइट हेल्ले आपणकर फॉर्म रिजेक्ट हो यूज ऑफ नॉन ब्लैक इंक तो कहली जदि सिग्नेचर बेले आप ब्लैक इंक यूज न करी ब्लू कि अलग इंक यूज कर तो आप रिजेक्शन हो देन सिग्नेचर रिटर्न एंड जदि सिग्नेचरटा आप कौन ब्लॉक लेटर कि कैपिटल लेटर कहते तो आपणकर फॉर्मटा रिजेक्शन होदी पोर रिजोल्यूशन जदि पोर रिजोल्यूशन कहली एतिकी क्वालिटी दरकार जदि नहला जदि सिग्नेचरटा अनक्लीयर हो गला तो सहीटा भी आप फॉर्म रिजेक्ट हो पारे आ देन कौन इनकम्प्लीट और पार्शियल विजिबल जब माने सिग्नेचरटा देखा हो कि पार्शियली विजिबल हो तो से केस भी आपनकर फॉर्म रिजेक्ट हो देन अपलोडिंग इमेज अदर दैन द सिग्नेचर तो सिग्नेचर न अपलोड कर जब भूल अलग किसी अपलोड कले सेटार भी रिजेक्शन हम सिग्नेचर नदेले भी रिजेक्शन हम थंब इंप्रेशन जदि देवे सिग्नेचर जगह से तो ये डिटेल्स गुड़ा देखु यहीगुड़ा जदि भूल करुँचा तो निहाती डिस्क्वालिफाई हेबे एटा तो भी निजे भी जानीपर बट कौन नॉन व्हाइट बैकग्राउंड रे फोटो उठेबेनी जिते बड़े लाइव फोटो उठेबे तो पछरे गोटे व्हाइट बैकग्राउंड रखिए आउ जिते सिग्नेचर कर ओनली ब्लैक इंक यूज करके सिग्नेचर करेंगे आ तार क्वालिटी मेंटेन करेंगे एंड कैपिटल लेटर करेंगे रनिंग हैंड राइटिंग मनकर कौन कहली सत्यव्रत तो ये रनिंग हैंड राइटिंग ही लिखे सिग्नेचर कैपिटल कि अन्य ब्लॉक लेटर लिखे तो एग्जाम प्रोसीड्योरटा कहीदे SC ST सर्टिफिकेट जो मैंने SC ST कैटेगोरी पिला होते देखो कौन अच्छी फ्री ट्रैवल ट्रेन ट्रैवल आपको यहाँ दबाक पड़ो निहाती डॉक्यूमेंट्स मस्ट भी देखो ये जो SC ST सर्टिफिकेट आमर PDF फॉर्मेट ओनली अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट तो PDF फॉर्मेट रे ही SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे आ फाइल साइज 400 कम KB रु कम होगा दरकार तो आमर जो SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे से आमर 400 KB कि ताठू लेस हवा दरकार सर्टिफिकेटा लेजिबल माने आम पढ़ी हो क्लीयर एंड इजिबल रीडेबल हवा दरकार तो
क्लीयरली विजिबल होउथिबा दरकार। एटा कोन लाटेस्ट आउ वैलिड सर्टिफिकेट हबा दरकार। तो एटा होची हमर एसएसटी सर्टिफिकेट पे एलिजिबिलिटी। देखो मोडिफिकेशन ऑफ सबमिटेड एप्लिकेशन कोन रही हमर 250 टका देकी आपन को जोटा कहउथिली 5 रु 14 आपण मॉडिफाई करि परिबे, बट आपन को 250 टका गोटे पेमेंट करिया पड़ियो। ठीक अछि। एटा आउ कोन होची नॉन रिफंडेबल। जेमति कि जनरल कैटेगरी 500 टका फॉर्म अप्लाई कले सीबीटी दे सरला हमको आपन को 400 टका रिफंड मिलिबो। आउ एससी एसटी वुमेन ट्रांसजेंडर पई हमर कोन 250 अछि, ओटा कि फुली रिफंड हबो। बट एई केस टोटली रिफंड हबोनी 250 टका, माने एक पैसा तो रिफंड हबो, मॉडिफिकेशन पई जहाँ जोटा 250 टका देइथे सेटा जमा रिफंड हबोनी। तो ट्राई करिए भल से ठीक रे फॉर्म अप्लाई करिया पई। जदि भी किसी बुझी पाना कहले मुझे आउ तेरे को विषय रे डिटेल्स रे वीडियो आन देबी। तो 14 पर मॉडिफिकेशन पई जमा अलाउ करबोनी, या पई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे देछि। आ कहिथिली मन गोटी आरआरबी ही पकेबे चूज करिवे, गोटी ही फॉर्म अप्लाई करिवे, नहले फॉर्म रिजेक्शन हबो। एटा भल से मन रखिवे। जमा भी डबल फॉर्म अप्लाई करबेनी किबा दीटा आरआरबी रे फॉर्म अप्लाई करबेनी। तो डायरेक्ट चलते देखो ये सर्टिफिकेट विषय रे जदि यार रेलवे गोटे अलग फॉर्मेट सर्टिफिकेट थाए तो या बेसी टेंशन नबा ना। फास्ट निज निज सर्टिफिकेट माने जहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनई दिंतु। तो जिते डीवी टाइम पूर्व तहसिलदार ऑफिस रु कि जहाँ भी आमर जी थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी भी थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाखु यहाँ फिलअप करके निजे खाली सिग्नेचर कर आनीदेवे। तो यहाँ एत ओरिड हवा दरकार ना। एवं देन वैकेंसी को जीवा को बोर्ड आमर केते वैकेंसी अच्छे देखंतु। वेस्टर्न रेलवे आमर मुंबईटा बोर्डटा वेस्टर्न रेलवे आछि, जोटारे टोटल वैकेंसी केते अच्छी देखंतु। असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग रे आमर 43 टोटल वैकेंसी अच्छी। कैरेज एंड वैगन अच्छी 152 वैकेंसी। एने लोको साइड अच्छी 12। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 58। तो ये भाया देखो सब पोस्ट को पोस्ट केते वैकेंसी एटा निजे देखिए। ठीक अच्छे। ट्रैक मेंटेनर यहाँ सबुठ देखो ट्रैक मेंटेनर सबुठ अधिक वैकेंसी आटा टिके लेबोरियस जॉब माने परिश्रम करिया पड़ो आपको। ट्रैक मेंटेनेंस देखी थे हामर आउ किसी इंस्ट्रूमेंट धरिकी लोक बुलूथे। तो यार जॉब प्रोफाइल विषय भी मुझे आनीदेवी कौ प्रोफाइल कौन कम रोचे। तो सबुठ यहाँ लेबोरियस कम ट्रैक मेंटेनर आईवी। ठीक अच्छे। तो ये सब पोस्ट भी नहीं देखी दिंतु कौ बोर्ड केते अच्छी देखो भुवनेश्वर मुंबई बोर्ड वैकेंसी टोटाल केते रोची। तो मैक्सिमम वैकेंसी मुंबई बोर्ड रोची। देन जयपुर रे केते कोन रोची राजस्थान जयपुर ट्रैक मेंटेनर सबुथिरे अधिक थिबो। तो डायरेक्ट आम भुवनेश्वर बोर्ड को जीवा। कारण ग्रुप डी पोस्ट बाहर करवा टिके कष्ट देखो। भुवनेश्वर बोर्ड आमर असिस्टेंट ब्रिज रे केते 5टा वैकेंसी अच्छी। असिस्टेंट कैरेज एंड विगन रे केते 48 वैकेंसी अच्छी। लोक सेड 5 8। आमर असिस्टेंट टीएल एंड एसी रे 7टा। असिस्टेंट पीओ रे 5टा। ट्रैक मेंटेनर देखो 400 वैकेंसी अच्छी, भल वैकेंसी अच्छी। असिस्टेंट एसएनटी रे 43 वैकेंसी। असिस्टेंट ट्रैक मशीन रे 77। पॉइंट्समैन ने 163। आउ असिस्टेंट टीआरडी रे 42। तो पॉइंट्समैन टा गोटे भल वैकेंसी, बट ट्रैक मेंटेनर टा गोटे कहली लेबोरियस जॉब आ बाकी ना सब ठीक ठाक। तो ये भाया टोटाल वैकेंसी देखो। तो देखो भुवनेश्वर बोर्ड टोटाल केते वैकेंसी रोची 803 वैकेंसी रोची। तो भल पोस्ट अच्छी आरआरबी भुवनेश्वर रे। तो आरआरबी आमर ओडिशा पिला जे अच्छी से आरआरबी भुवनेश्वर बोर्ड 803 ये बोर्ड अप्लाई करेंगे आपण मान सब बेस्ट अलग बोर्ड जीवा अपेक्षा। ठीक अच्छे। आरआरबी भुवनेश्वर बोर्डटा आउ थे डिटेल्स देखी दिंतु। आमर सबुठ वैकेंसी अधिक अच्छी ट्रैक मेंटेनर, बट यहाँ लेबोरियस जॉब। यहाँ पॉइंट्समैन टा टिके भल ता अपेक्षा भल जॉब जोटा कि 163 वैकेंसी अच्छी।
ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି ଯେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ଥିବ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ଦେନ୍ ଅଲଗା ତ ନର୍ଦର୍ନ ରିଜିଅନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି, ଆଇଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନହେଲେ ଯଦି କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଥିବେ ସେ କୋଲକାତା ରିଜିଅନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତ 393, 208 ତ ନିୟରଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ତ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଥିବେ ଯେ କୋଲକାତା ପାଖାପାଖି ରିଜିଅନ୍ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିମ୍ବା ସାଉଦର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ RRB ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଯେତେବେଳେ କାଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାସିଲା ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ଡ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆମର ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫର୍ମ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଆଣିଦେବି। ଦେନ୍ ଯଦି RRB ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ଜବ୍ର କ'ଣ କାମ, ଯଦି ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଗୋଟେ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ନୋଟିସ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।